अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को या नहीं? यस सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we are discussing ion exchange chromatography. ठीक है, we discussed its principle that how ions are exchanged using various types of materials and ions. ठीक है, so today we are discussing column packings in the ion exchange and similarly some other aspects of the ion exchange chromatography. ठीक है, so ion exchange packings जो है, so historically ion exchange chromatography was performed on small porous beads formed during emulsion copolymerization of styrene and divinyl benzene. ठीक है, so this is the polystyrene structure. ठीक है, so you see that these are cross linked. ठीक है, and they are incorporated these ionic groups. ठीक है, so these may be strong ionic groups as in this case. ठीक है, or it may be weak weak acids. ठीक है, in this case it is strong acid, it can be carboxylic acid. ठीक है, similarly other groups that may be incorporated. ठीक है, so these are exchanging with those analyte ions. ठीक है, so the presence of divinyl benzene that is usually around 8% results in cross linking which make the beads mechanically stable. ठीक है, now to make the polymer active towards ion, acidic or basic functional groups are bonded chemically to the structure. ठीक है, the most common groups are sulfonic acid and quaternary amines. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ cationic or anionic groups जो है that can be incorporated depending on the type of analyte. ठीक है, ठीक है, now you see that this is the structure. ठीक है, and the cross linking that hold the linear polystyrene molecules together. ठीक है, these are cross linkings. ठीक है, ये है, these are cross linked structures. ठीक है, तो ये जो है इसको एक फर्म सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ठीक है, now porous polymeric particles are not entirely satisfactory for chromatographic packings because of the slow rate of diffusion of analyte molecules through the micropores of the polymer matrix and because of the compressibility of the matrix. ठीक है, ये जो matrices है, ठीक है, तो इससे अगर प्योरली आप कॉलम पैकिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, पोरोसिटी है, वो जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेस भी होता है. ठीक है, और इससे जो है इसमें जो पोर्स होते हैं थ्रू विच डिफ्यूजन ऑफ द एनालाइट टेक्स प्लेस, तो वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता. ठीक है, नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू न्यूअर टाइप्स ऑफ पैकिंग्स हैव बीन डेवलप्ड and are in more general use than the non-porous than the porous polymer type. ठीक है, एक क्या है, वन इज ए पॉलीमेरिक बीड पैकिंग. ठीक है, इन एक बीड होता है. ठीक है, इन विच द बीड सरफेस इज कोटेड विद ए सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन. ठीक है, यानी बीड्स के ऊपर जो है आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर जो है एडसॉर्ब. ठीक है, a second type of packing is prepared by coating porous microparticles of the silica such as those in adsorption chromatography with a thin film of the exchanger. ठीक है, तो ये दो जो है दो तरह की कॉलम जो है दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, अब ये जो पार्टिकल साइज है इनकी ये 3 to 10 माइक्रोमीटर्स है, तो इसमें जो है पोरोसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, एंड द परफॉर्मेंस दैट इज relatively more. ठीक है, with either type faster diffusion in the polymer film leads to enhanced efficiency. ठीक है, now polymer based packings have higher capacity than silica based packings and can be used over a broad pH. ठीक है, अब इन दोनों में से जो है जो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो जो है पॉलीमर बेस्ड पैकिंग्स है. ठीक है, क्योंकि उस पर पीएच का कोई असर नहीं होता. ठीक है, और सिलिका बेस्ड जो होता है, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो है पीएच लिमिटेशन है, बेसिक पीएच पे जो है जो सिलिका पार्टिकल्स है दैट गेट डिजॉल्व. ठीक है, तो उसमें जो है सिलिका बेस्ड आयन एक्सचेंजर्स जो हायर एफिशिएंसी बट सफर फ्रॉम ए लिमिटेड पीएच रेंज ऑफ स्टेबिलिटी
एंड इनकम्पेटिबिलिटी विद सप्रेसर बेस्ड डिटेक्शन। ठीक है, जो सप्रेसर बेस्ड डिटेक्शन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ भी ये इनकम्पेटेबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो है जो इनऑर्गेनिक आयन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ना इनऑर्गेनिक आयन क्रोमेटोग्राफी जो है, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि इसमें जो इनऑर्गेनिक आयंस है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो एक्चुअली है डिटेक्शन। ठीक है, जिस तरह हमने इन द इनिशियल इन प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस किया था कि आयन क्रोमेटोग्राफी में जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है डिटेक्शन ऑफ द एनालाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मोबाइल फेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस मोबाइल फेज में हम एनालाइट से रिलेवेंट जो है एनाइंस या कैटाइंस वो भी उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो जो एनाइंस और कैटाइंस है दैट इज आल्सो इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम। ठीक है, और चूंकि इसमें हम कंडक्टिविटी बेस्ड जो है डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, सो दैट इंटरफेयर विद दैट ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक मसला है जिसको हम ओवरकम करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। ठीक, so the mobile phase in ion exchange chromatography must have the same general properties required for other types of chromatography। ठीक है, यानी k वैल्यू है, इसी तरह अल्फा वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, that is it must dissolve the sample definitely analyte will be present in the mobile phase। ठीक है, have a solvent strength that lead to reasonable attention times, यानी appropriate k values जो है 2 to 10 इसकी k values होनी चाहिए, and interact with solutes in such a way as to lead to the selectivity alpha values। ठीक है, ये हमने already discuss किया है, no need to repeat these। ठीक है, now the mobile phases in the ion exchange chromatography are aqueous solutions। ठीक है, that may contain moderate amounts of the methanol or other water miscible organic solvents, and these mobile phases also contain ionic species। ठीक है, तो इसमें ionic species भी मौजूद होती है, often in the form of a buffer। ठीक है, now solvent strength and selectivity are determined by the kind and concentration of these added ingredients। ठीक है, इसमें जो added ingredients है तो उसके बेस पे जो है हम इसकी स्ट्रेंथ और सेलेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, now in general the ions of the mobile phase compete with the analyte ions for the active sites and the ion exchange packing। ठीक है, समझ आ रही है या नहीं? आर यू फॉलोइंग मी? जी जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक को हम कहते हैं सप्रेसर बेस्ड आयन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है सिंगल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, they differ in the method used to prevent the conductivity of the eluting electrolytes। इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो सप्रेसर क्रोमेटोग्राफी है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, उसमें जो हम इलूटिंग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसको हम सप्रेस कर लेते हैं। कैसे, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कंडक्टिविटी रह जाती है, सो दैट इज ओनली ऑफ द जो है एनालाइट। ठीक है, अच्छा, इस सप्रेसर आयंस में हम क्या करते हैं? ठीक है, इसमें हम ये करते हैं जनरली, आप मुझे सुने, ठीक है, बजाय कॉलम को देखने के, कि इसमें हम दो कॉलम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कॉलम में हम जो है एनालाइट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे जो उसके बाद वाला कॉलम है उसमें क्या होता है? ठीक है, उसमें हमारे पास हम एक ऐसा रेजन यूज़ करते हैं, ठीक है, कि उस रेजन के साथ जो एक्टिव साइट होता है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, वो जो इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज HCl। ठीक है, तो इसको जो है ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ये हमारे पास HCl है जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोराइड आयन और इसके साथ जो है दूसरा जो आयन है वो है कोई भी एनालाइट है दैट इज आल्सो बियरिंग दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस रीजन के साथ इसने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, सो देयर इज रीजन क्लोराइड। ठीक है, और ये जो है इनसॉल्युबल है। ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल, और उसके साथ साथ इट इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ठीक है, तो हमारे पास उस तरफ सिर्फ वाटर निकलता है। ठीक है, दूसरी कॉलम से वाटर निकल जाएगा एंड दिस आयन हैज बीन सप्रेस्ड। ठीक है, तो जो एनालाइट आयन है वो इस रीजन के साथ इंटरफेयर नहीं करता,
सो ओनली वाटर अलॉन्ग विद दैट आयन इज इल्यूटेड, ठीक है, और उसको फिर वहाँ पे जो है आसानी के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है जो है नेगेटिव आयंस है, ठीक है। इसी तरह ये जो है यहाँ पे आप देख ले, ठीक है, तो सोडियम है, ठीक है, क्लोराइड की बजाय जो एनाइंस है, ठीक है, तो सोडियम को हम रिमूव करते हैं थ्रू दिस रीजन एंड वी आर लेफ्ट विद द कार्बोनिक एसिड, ठीक है, along with the analyte that is present, ठीक है। तो इस तरह जो है हम जो इंटरफेरिंग एनाइन है या कैटाइन है उसको हम सप्रेस कर लेते हैं, उसको हम रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। So, in the 1975, the problem created by the high conductance of the eluents was solved by the introduction of an eluent suppressor column immediately following the ion exchange column. ठीक है? The suppressor column is packed with a second ion exchange resin that effectively converts the ions of the eluting solvent to a molecular species of limited ionization without affecting the conductivity due to analyte ions. ठीक है? समझ आ रही है या नहीं? जी जी सर, आ रही समझ। Now, for example, when cations are being separated and determined, hydrochloric acid is chosen as the eluting reagent. ठीक है? Now, and the suppressor column is an ion exchange resin in the hydroxide form. The product of the reaction in suppression is water. ठीक है? ये हमारे पास reaction हो जाता है, ठीक है? The analyte cations are not retained by this column. ठीक है? तो हमारे पास जो है वो रह जाती है, ठीक है? Now, for anion separation, the suppressor packing is the acid form of a cation exchange resin, and sodium bicarbonate or carbonate is the eluent agent. The reaction of the suppressor जो है वो हमारे पास ये रह जाता है, resin sodium resin salt, ठीक है, of the sodium along with the carbonic acid, ठीक है। The largely undissociated carbonic acid does not contribute significantly to the conductivity, ठीक। Now an inconvenience, अब इनके साथ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ दीज साइट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिन साल्ट बन गया द सोडियम, अब ये जो है एक मतलब आपने इसको इल्यूट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इस ये जो साइट्स है ये तो ऑक्यूपाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये कॉलम जो है ये तो डीएक्टिवेट हो गया, अगली मरतबा इस पर अगर जो है क्लोराइड आयन सोडियम आयन आएगा तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हमने रीएक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है एक प्रॉब्लम है, ठीक है। So now an inconvenience associated with the original suppressor column was the need to regenerate them periodically, ठीक है। So that is typically every 8 to 10 hours। इससे आप दोबारा जो है HCl गुजार दें, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम जो है वो इल्यूट हो जाएगा and it will be replaced with the corresponding ions, ठीक है, to convert the packing back to the original acid or base form, ठीक है। Now in the 1980s, however, अब इसमें जो है ये मसला है कि आपने जो है उसको कॉलम को जो है इंटरप्ट करना है, ठीक है, और 8 to 10 आवर्स के बाद आपने उसको रीजनरेट करना है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू हैव ए कंटिन्यूस एनालिसिस, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अदर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज डेवलप्ड दैट इज माइक्रो मेम्ब्रेन सप्रेसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये एम, ठीक है, ये एम जो है ये है एक मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो है दिस इज परमिएबल, ठीक है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस परमिएबल मेम्ब्रेन पे जो है हमने रेजन्स को जो है डिपॉजिट किया है, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजन्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम इससे हम जो है दो तरह के जो है जो इल्यूएंट हम गुजारते हैं, ठीक है। एक हम इससे इल्यूएंट गुजारते हैं, ये इल्यूएंट फ्लो है, ठीक है, ये यहाँ से गुजर गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इस मेम्ब्रेन के उस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे जो है ये गुजर रहा है, ठीक है, इट इज पासिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी तरह एक रीजेनरेंट फ्लो जो है, ठीक है, यानी जिससे हम इसको रीजनरेट करते हैं, ठीक है, दैट इज फ्लोइंग अपोजिट to the eluent, ठीक है, and that is present on the other side of the membrane, वो इस साइड पे है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब ये इल्यूएंट गुजरता है तो इस साइड पे मौजूद जो रेजन्स है, ठीक है, दैट ट्रैप द सोडियम, ठीक है, वो यहाँ पे सोडियम को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, एंड दैट सोडियम इज
बिकॉज दिस इज परमिएबल, तो वो इस साइड पे जो है वो परमिएट हो जाते हैं, इस साइड पे निकल आते हैं, ठीक है। अब इस साइड पे जब इससे HCl गुजरता है, ठीक है, तो वो अपने साथ सोडियम लेके चला जाता है और वापस जो है दिस इज रीजनरेटेड, ये जो सप्रेसर कॉलम है, रीजन है, दैट इज रीजनरेटेड, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो मेम्ब्रेन है अब द रीजन दैट इज कंटिन्यूसली रीजनरेटेड फॉर ट्रैपिंग द सोडियम और फॉर एग्जांपल द बेस आयन, ठीक है, द क्लोरीन आयन। समझ आ रही है या नहीं? इज इट जी क्लियर? सर आ रही है, समझ आ रही है सर। बिल्कुल, शाबाश। ठीक है जी, तो an inconvenience, अच्छा ये now in 1980s high or micromembrane suppressors that operate continuously became available, ठीक है। The eluent and the suppressor solutions flow in opposite direction on either side of the membrane, permeable ion exchange membrane M, ठीक है। For the analysis of the anions, the membranes are cation exchange reagents. For cations, they are anion exchange reagents, ठीक है। मतलब different types of reagents are used accordingly, ठीक है। Now, when, for example, sodium ions are to be removed from the eluent, acid or regeneration flows continuously in the suppressor stream, ठीक है। Sodium ions from the eluent exchange with the hydrogen ions from the membrane and then migrate across the membrane where they exchange with the hydrogen ions of the regeneration region, ठीक है। This device has a remarkably high rate exchange rate, ठीक है। Now, for example, it is capable of removing essentially all of the sodium ions from a 0.1 molar solution of sodium hydroxide when the eluent flow rate is 2 ml per minute, and 2 ml per minute is a very huge flow, ठीक है। तो मतलब it is having a very high capacity of regenerating this suppressor column, ठीक है। अच्छा, now in जी सर ये रीजनरेट फ्लो की समझ नहीं आई सर। आपने बताया कि ये जो आयंस है वो एम से निकल आते हैं, फिर जब दूसरी दफा फ्लो आती है फिर वो उस जो निकले ऑलरेडी निकले हुए आयंस है उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल सर इस रीजनरेट फ्लो का फिर यहाँ पे क्या काम है सर, इसकी समझ नहीं आई। देखो ये कॉलम आपको नजर आ रही है, मेरा जो कर्सर है, जी कर्सर सर आ आपको रही है। नजर आ रहा है? देखो ये कर्सर है, यहाँ से जो है इल्यूएंट जा रहा है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन की इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे रेजन्स है विच एक्सचेंज सोडियम, ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन, सही है। जी जी सर। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है ना ये परमिएबल है, तो जब ये परमिएबल है तो ये सोडियम जो है इट परमिएट्स टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पे निकल आता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फ्लो हो रही है ना, ठीक है। जी जी सर। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि ये तो इस तरफ से जा रहा है, सोडियम इस साइड पे निकल आया दूसरी साइड पे, ठीक है। तो इस साइड पे हमने यहाँ से HCl गुजार दिया दोबारा इस साइड पे, ठीक है, जो कि इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, वो जो है इस साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोडियम आयंस निकल आए हैं, ठीक है, पर जो यहाँ से जो है डिफ्यूज होके आए हैं, तो दैट इज जो है वॉश्ड अवे बाय द HCl, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो H आयन रह जाता है और सोडियम जो है दैट इज अगेन जो है रिमूव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो इस तरह ये जो रीजन है दैट इज अगेन रीजनरेटेड फॉर एन अदर ट्रैपिंग ऑफ द सोडियम आयन, सही है। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। Now, in recently designed commercial instruments, regeneration of the suppressor solution is performed automatically with the electrode generated hydrogen और हाइड्रॉक्सिल आयन। अब जो मौजूदा और जो कंटेम्प्रेरी इक्विपमेंट्स है उसमें हम क्या करते हैं कि हम थ्रू हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हम हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयंस को क्रिएट करते हैं जो कि उसको जो है रिमूव करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि ये जो प्रोसेस है ये हम यूज़ करें, ठीक है, सो दैट द इंटरप्शन इन द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रीजनरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आज अभी जो सप्रेसर कॉलम है इसकी जो है जो फॉर एग्जांपल आप ये देख लें तो हाउ मच सेंसिटिव इट इज़, ठीक है, ये आप देख लें, इस पे जो है हमने एनाइंस और कैटाइंस दोनों को जो है सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। ये जो ए है दीज आर एनाइंस, ठीक है, और जो बी है सो दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब इसको अगर आप देख लें तो पार्ट पर मिलियन 3, 8, 10, 4, ठीक है, सो मीन्स दैट दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, ठीक है, कि जो इंतहाई कम मकदार में जो है हमारे पास मौजूद है सोल्यूशन में, ठीक है, या हमें जो सैंपल यूज किया है दैट इज इन एक्सट्रीमली लो क्वांटिटीज, बट स्टिल वी हैव कंप्लीटली सेपरेटेड
ऑल दीज आयंस, ठीक है। इसी तरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। तो इस तरह आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है उस पर हम इसको जो है बहुत आसानी के साथ इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये जो करंट ये जो रोवर गया है मार्स पे, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरह के जो है मिनिएचराइज्ड जो है या बिल्कुल कम्पैक्ट स्मॉल किस्म की जो है कैपिलरी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो लगी है, ठीक है, जो कि वहाँ की अर्थ की इस तरह की एनालिसिस करके भेजने की सलाहियत रखता है, ठीक है। Actually, now in each case, the ions were present in the parts per million range, and the sample size were 50 microliter in one case and 100 microliter in the other. Okay, so that is extremely small sample size. Okay, this method particularly important for anion analysis because no other rapid and convenient method for handling mixtures of this type exists. Okay. अच्छा जी, फिर है हमारे पास सिंगल कॉलम आयन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम सप्रेसर उसको यूज नहीं करते, ठीक है। Now, commercial ion chromatography instrument that require no suppressor columns is also available. ठीक? This approach depends on the small differences in the conductivity between sample ions and the prevailing eluent ions. इसमें हम क्या करते हैं कि जो आयन एक्सचेंज है उसको हम वेरी लो कैपेसिटी पे रखते हैं, ठीक है। और जो आयन्स हैं इल्यूएंट में जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको भी हम इंतहाई कम दर्जे पे रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो माइनर चेंज आता है इन बिकॉज ऑफ द एनालाइट तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल इसको जो डिटेक्शन लिमिट है, सेंसिटिविटी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नाउ टू एम्पलीफाई दीज डिफरेंसेस लो कैपेसिटी एक्सचेंजर्स आर यूज्ड दैट परमिट इल्यूजन with solutions with low electrolyte concentrations. Furthermore, eluents of low conductivity are chosen. Single column ion chromatography offers the advantage of not requiring special equipment for suppression. यानी इस तरह उसमें है, ठीक है। However, it is a somewhat less sensitive method for determining anions than suppressor column methods. यानी ये less sensitive है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह इसी सिस्टम को जो है हम सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं टू ए वेरी लो लेवल, ठीक है, जस्ट टू रिड्यूस द लो यूज ऑफ जो है कंज्यूमेबल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनालाइट्स एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। So chromatographic systems in general and ion chromatography equipment in particular have been part of the miniaturization trend, ठीक है। उसको इंतहाई कम लेवल पे उसको लेके आना, कम्पैक्ट फॉर्म में और स्मॉल फॉर्म में उसको लेके आना, ठीक है। सो कैपिलरी एंड क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइजेस कैपिलरी कॉलम्स ऑफ 0.4 mm, इतना स्मॉल, which in turn provides scaled down volumes of reagents and flow rates of about factor 100. किस तरह की, फॉर एग्जांपल if a standard analytical ion chromatography system consumes 50 liters, ठीक है, of the eluent per month, a capillary system would consume 0.5 liter per month. So look at the huge difference of जो है 50 liters and 0.5 liters, ठीक। So furthermore, manufacturers offer electrolyte eluent regeneration equipment to allow regeneration of the suppressor elution by adding acid or base at the column head, ठीक है। ये जो suppression regeneration है वो भी ज़्यादा efficient हो गया है, ठीक है, thus eliminating eluent preparation steps in the analytical process तरह हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अच्छा, यूजेस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिकल एप्लीकेशंस जो है, so ion exchange chromatography has been applied to a variety of organic and biochemical systems, including drugs and their metabolites, ठीक है, serums, food preservatives, vitamins, sugars, pharmaceutical preparations, ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक टिपिकल एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 × 10⁻⁻18 मोलर, यानी इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन में हमारे पास 17 अमीनो एसिड्स, ठीक है, उसको आप देख लें। सो दैट हैज बीन कंप्लीटली सेपरेटेड बाय दिस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, 17 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है, हैविंग ए वेरी वेरी लो जो है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है मीन दैट दे आर वेरी मच एफिशिएंट जो है इन सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक और जो है कैटायनिक स्पीशीज, ठीक है। तो ये जो है दिस इज the uses and जो है different aspects of the ion exchange chromatography, ठीक है। So this is the end of today's lecture. If you are having any questions, you may ask. जी, any question?
जी, कुछ समझ आ रही है या नहीं आप लोगों को बाकी को? फीमेल्स, ठीक है जी।